Wouldn't it be wonderful if we could understand God's mind concerning any problem? क्या यह अच्छा नहीं होगा यदि हम किसी समस्या के विषय में परमेश्वर के मन को समझ सके, Or concerning the solution to a problem? या किसी समस्या के समाधान के विषय में? We want to turn to the Word of God in Romans chapter 12 and verse 2. आइए हम रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसके 2 में परमेश्वर के वचन की ओर मुड़े। Here it says, the Holy Spirit is speaking to our hearts, and I want you to listen very carefully as God is trying to speak to your heart. यहाँ पवित्र आत्मा हमारे हृदय से बात कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुने परमेश्वर आपके हृदय से क्या बात करने की कोशिश कर रहा है। Don't be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। So we see here that God wants us to be transformed inwardly. हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम आंतरिक रूप से रूपांतरित हो। He's speaking here about the renewing of our mind. वह यहाँ हमारे बुद्धि के नवनीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। We considered in an earlier study how the Word of God and the Holy Spirit moved upon the chaotic earth. हम पहले के अध्ययनों में से का जिक्र करते हुए विचार किया है कि कैसे परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा बेडोल पृथ्वी पर मंडरा रहा था। We read that in Genesis chapter 1. और इसे हम उत्पत्ति 1 अध्याय में पढ़ सकते हैं। And produced from that chaotic situation order, form, beauty, light and every good thing. और कैसे उस बेडोल स्थिति से अनुशासन, सौंदर्य, प्रकाश और हर अच्छी बात उत्पन्न की। Until at the end we read in Genesis 1:26 that God himself could say, this is excellent, this is very good. कि अंत में परमेश्वर स्वयं कह सके यह उत्तम है, यह बहुत अच्छा है। And do you know that's just a faint picture of what God wants to do in our life also. क्या आप जानते हैं यह एक फीकी तस्वीर है कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी क्या करना चाहता है। To take our chaotic, formless, dark life and allow the Holy Spirit to work upon us, let the Word of God sink into us and change us inwardly. हमारे बेडोल, निराकार और अंधकारमय जीवन को लेकर पवित्र आत्मा को हम पर कार्य करने देता है कि परमेश्वर के वचन को हम में इतना समाने दे और इसे हमें अंदर से इतना बदलने दे कि अंत So much that at the end he can look at our lives and say, excellent. अंत में वह हमारे जीवन को देखकर कह सके उत्कृष्ट। In other words, we who were such wretched, corrupt, sinful creatures full of bitterness and envy and evil in so many forms. दूसरे शब्दों में हम जो इतने मनहूस, भ्रष्ट और पापी प्राणी थे, कई तरह से कड़वाहट, ईर्ष्या और बुराई से भरे हुए थे, are so radically transformed by the Word of God and the Holy Spirit that we begin to manifest the nature of Christ himself. परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा द्वारा इतने मौलिक रूप से बदल दिए जाते हैं कि हम मसीह की प्रकृति को प्रकट करना शुरू कर देते हैं। That's the meaning here of the renewing of our mind. यही हमारे बुद्धि के नवनीकरण का अर्थ है। And that means, if we were to put it in other words, इसे दूसरे तरीके से कहे तो that God wants our mind to begin to think the way he thinks. परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन भी वैसे सोचने लगे जैसे वह सोचता है। That's what it means to have our mind renewed. और यही हमारे बुद्धि के बदलने का अर्थ है। When our mind is not renewed, even if we are born again and our sins are forgiven, we may still think the way worldly people think. जब हमारे बुद्धि का नवनीकरण नहीं होता है, भले ही हम नया जन्म ले और हमारे पापों की क्षमा कर दिया जाए, तब भी हम वैसे ही सोचते रहेंगे जैसे सांसारिक लोग सोचते हैं। And unfortunately, this is true with a lot of believers because they don't grow. दुर्भाग्य से यह बहुत से विश्वासियों के साथ सच है क्योंकि वे विकसित नहीं होते। Their mind thinks exactly like the people in the world concerning money, concerning pretty women, concerning property, concerning position, honor, and the way they look at their enemies and
everything else. उनकी बुद्धि संसार के लोगों की तरह ही धन, सुंदर स्त्री, संपत्ति, पद और सम्मान के बारे में सोचती है और जिस तरह से वे अपने शत्रु और बाकी सब बातों को देखते हैं। But God views all these things in a different way. लेकिन परमेश्वर इन सभी बातों को अलग तरह से इस्तेमाल करता है। What does it mean to be transformed? रूपांतरित होने का क्या अर्थ है? To be changed into the likeness of Christ. इसका अर्थ है मसीह की समानता में परिवर्तित होना। Where does it take place? It doesn't take place in our physical appearance. यह कहाँ होता है? यह हमारे शारीरिक स्वरूप में नहीं होता है। God is not in the business of physically making us look like Jesus. That would be no use. परमेश्वर हमें शारीरिक रूप के यीशु की तरह दिखाने के व्यवसाय में नहीं है। यह किसी काम का नहीं होगा। He's in the business of changing our inner character and life into the likeness of Christ. And how does this happen? वह हमारे आंतरिक चरित्र और जीवन को मसीह की समानता में बदलने के व्यवसाय में है। यह कैसे होता है? He does it through renewing our mind. That means our way of thinking. वह हमारे बुद्धि को नवनीकृत करके ऐसा करता है, यानी कि हमारे सोचने के तरीके को बदलकर। He makes us think the way he thinks. वह हमें वैसा ही सोचने के लिए प्रेरित करता है जैसा वह सोचता है। Now how does that happen? यह कैसे होता है? Through the word of God. जैसा वह परमेश्वर के वचन के माध्यम से सोचता है। See, in the Bible, we can say God's way of thinking. बाइबल में परमेश्वर जैसे सोचने का तरीका है। If you want to know what God thinks of sin, read the Bible. अगर आप परमेश्वर के सोचने के तरीके को जानना चाहते हैं तो बाइबल पढ़िए। If you want to know what God thinks of money, read the Bible. यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर धन के बारे में क्या सोचता है तो बाइबल पढ़िए। If you want to know what God thinks of adultery or theft or cheating others or jealousy or of selfishness or unselfishness or humility or pride, परमेश्वर व्यभिचार, चोरी, दूसरे को धोखा देना, ईर्ष्या, स्वार्थ या निस्वार्थता, नम्रता या अभिमान या किसी भी मामले के बारे में क्या सोचता है? you want to know what God thinks about any of these things, just read the Bible. या किसी भी मामले के बारे में परमेश्वर क्या सोचता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो बस बाइबल पढ़िए। The answer is there. उत्तर वही है। And Jesus, when he came to earth, was called the Word of God. जब यीशु पृथ्वी पर आए तो उन्हें परमेश्वर का वचन कहा गया। We're told the Word became flesh, हमें बताया गया है कि वचन देहधारी हुआ, which means that if you want to know what God thinks about anything, about any subject, you've got to look at the life of Jesus and you have the answer. इसका अर्थ यह है कि यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर किसी विषय के बारे में क्या सोचता है तो आपको यीशु के जीवन को देखना होगा और आपके पास उत्तर होगा। There, the Word of God was not just in written form, but manifested in human form. वहाँ परमेश्वर का वचन केवल लिखित रूप में ही नहीं बल्कि मानव रूप में भी प्रकट होता है। See, this is the difference between the Old Testament and the New Testament. पुराने नियम और नए नियम के बीच यही अंतर है। In the Old Testament, they had God's Word in written form. पुराने नियम में उनके पास लिखित रूप में परमेश्वर का वचन था। There were the 10 Commandments written on 2 pieces of rock. चट्टान के 2 टुकड़ों पर 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी। And there was the law written on many scrolls of parchment. और चर्म पत्र के कई स्क्रॉलों पर व्यवस्था लिखी गई थी। But when Jesus came, there we had the Word of God in human form. लेकिन जब यीशु आया तो हमारे पास परमेश्वर का वचन मानव रूप में था। And it's much easier to read the Word of God in human form than it is read the Word of God in a scroll of parchment or in a book. परमेश्वर के वचन को मानव रूप में पढ़ना चर्म पत्र या किसी पुस्तक में परमेश्वर के वचन को पढ़ने से कहीं अधिक आसान है। So today, God wants to make each of us demonstrations of the Word of God written in human form. परमेश्वर हम में से प्रत्येक को मानव रूप में लिखे गए परमेश्वर के वचन का प्रदर्शन करना चाहता है। And how does that happen? ऐसा कैसे होता है? Through God renewing our way of thinking so that we begin to think like He thinks. And when we begin to think like He thinks, we begin to act like He would act. परमेश्वर के माध्यम से हमारे सोचने के तरीके को नवीनीकृत करना ताकि हम जैसा वह सोचता है वैसा ही सोचना शुरू करें। जब हम वैसा सोचने लगते हैं जैसा वह सोचता है तो हम वैसे ही कार्य करने लगेंगे जैसा वह कार्य करेगा। Our whole inner life controls our external behavior. आप देखिए हमारा पूरा आंतरिक जीवन हमारे बाहरी व्यवहार को नियंत्रित And करता है। that's why it says here, don't be conformed to the world.
और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है संसार के सदृश मत बनो। Now, when we are born into the world, अब जब हम संसार में पैदा होते हैं, we can say a little baby has got no particular way of thinking. A newborn baby is not worldly because it doesn't have a worldly way of thinking. तो हम छोटे बच्चों की तरह होते हैं जिनके पास सोचने का कोई विशेष तरीका नहीं है। एक नवजात शिशु सांसारिक नहीं होता क्योंकि उसके पास सोचने का कोई सांसारिक तरीका नहीं होता है। It's just born. But as it grows up and its nature develops, that evil corrupt nature it's got from Adam, and वह अभी पैदा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है इसकी प्रकृति विकसित होती है। वह दुष्ट भ्रष्ट स्वभाव जो उसे आदम से विरासत में मिला है, it grows seeing the world around it and ways people live selfishly and अपने चारों ओर के संसार को देखकर बढ़ता है, जिस तरह से लोग स्वार्थी रहते हैं। nowadays we have advertisements in the newspapers telling us this is good and that is good. और जैसे आजकल हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं यह अच्छा है वो अच्छा नहीं है। We are surrounded by people who tell lies, and इस तरह हम झूठ बोलने वाले लोगों से घिरे रहते हैं। as that baby develops, we can say its way of thinking is exactly like everybody else in the world. जैसे ही वो बच्चा विकसित होता है उसके सोचने का तरीका बिल्कुल संसार के बाकी सभी लोगों जैसा हो जाता है। Selfish, seeking its own, proud, arrogant, jealous of others who are better. So many things like this. स्वार्थी, स्वयं की तलाश करने वाला, अभिमानी, जलन रखने वाला, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला जो उनसे बेहतर है, और ऐसे ही बहुत सी बातें। And therefore, it harms others, hurts others. इसलिए वह दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, दूसरों को चोट पहुंचाता है। But when Christ comes in, his desire is, the new birth means it's like a baby being born all over again, and now we should allow this new life to develop and take over our way of thinking, so that now we begin to think like God thinks. लेकिन जब मसीह अंदर आता है तो फिर से जन्म लेने वाले विश्वासी के लिए उसकी इच्छा या सब कुछ बदलना की होती है। एक नया जन्म फिर से जन्म लेने वाले बच्चे की तरह होता है। And so, gradually, as we allow our thinking, our patterns of thinking to change, we will find when we face life situations, we know God's answer to those problems. धीरे धीरे जैसे कि हम अपनी सोच विचार के तरीके को बदलने की अनुमति देते हैं, हम पाएंगे कि जब हम जीवन की परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हम उन समस्याओं के लिए परमेश्वर का जवाब जानते हैं। Now, when you come to a crisis in your life and you say, "Oh God, now what shall I do? I want to know your will." अब जब आप अपने जीवन में संकट की स्थिति में आते हैं और आप कहते हैं परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं आपकी इच्छा जानना चाहता हूं। Here I have come to a crossroads in life and I have to take this decision or that decision. I don't know what to do. मैं जीवन में एक चौराहे पर आ गया हूं, मुझे निर्णय या वह निर्णय लेना है, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या करना है। Well, here it tells us in Romans 12:2 how we can know God's will in such a situation. खैर यहाँ रोमियो 12 अध्याय उसके दूसरे वचन में कहा गया है कि हम ऐसी स्थिति में परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। If during the years preceding your coming to that crossroads or that crisis in your life, you had allowed the Holy Spirit through God's word to change your way of thinking, यदि उस चौराहे या उस संकट पर आपके आने से पहले के वर्षों के दौरान आपने पवित्र आत्मा को परमेश्वर के वचन के माध्यम से अपने सोचने के तरीके को बदलने की अनुमति दी थी, at that point in your life now, you will be able to prove, like it says in Romans 12:2, what is the good and acceptable and perfect will of God. तो अपने जीवन में उस संकट बिंदु पर आप यह साबित करने में सक्षम होंगे कि क्या अच्छा है और परमेश्वर की भावती और सिद्ध इच्छा क्या है। रोमियो 12:2। But if you've been a careless Christian and you've not cared to let the word of God change your way of thinking, you're going to come to that crisis in your life and not know what to do. लेकिन यदि आप एक लापरवाह मसीह थे और आपने परमेश्वर के मार्ग को अपने सोचने के तरीके को बदलने की परवाह नहीं की थी, तो आप अपने जीवन में उस संकट में आने वाले हैं और नहीं जानेंगे कि क्या करना है। You're going to have to run to some older godly brother and ask him for advice, and maybe he can give you good advice. आपको सलाह मांगने के लिए किसी बड़े मसीह भाई के पास दौड़ना होगा और हो सकता है कि वो आपको अच्छी सलाह दे सके। But do you know that is an Old Testament way? लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पुराने नियम का तरीका है। In the Old Testament, the only man who knew God's will was a prophet, if there was a true prophet, and they were very rare. पुराने नियम में एकमात्र व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा को जानता था
वह भविष्यवक्ता था। यदि वह एक सच्चा भविष्यवक्ता है तो वे बहुत दुर्लभ थे, And sometimes for centuries on end, there would be no true prophet. और कभी-कभी सदियों के अंत तक कोई सच्चा भविष्यवक्ता नहीं But होता। if there happened to be a true prophet around, you had to go to him and ask him what to do in a particular situation. Even the kings had to go to the prophets. And then the prophet would find God's will and tell the king or you if you asked him. लेकिन अगर आसपास कोई सच्चा भविष्यवक्ता होगा तो आपको उसके पास जाना होगा और पूछना होगा कि किसी विशेष स्थिति में क्या करना है। राजाओं को भी भविष्यवक्ताओं के पास जाना पड़ता था। तब भविष्यवक्ता परमेश्वर की इच्छा को ढूंढेगा, और यदि तूने उससे पूछा होता तो राजा या तुझे बता देता। But in the New Testament, the Bible says in Hebrews in chapter 8 and verse 11, नए नियम में बाइबल इब्रानियों 8 अध्याय 11 में कहती है कि you don't have to teach everyone his fellow citizens saying, know the Lord, because all will know me personally, from the least to the greatest. और हरेक अपने देश वालों को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचाने, क्योंकि छोटे से बड़े सब मुझे जान लेंगे। So one of the privileges we have, because the Holy Spirit, God himself, has now come to dwell in our hearts, is हमारे पास एक विशेष अधिकार है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का स्वयं अब हमारे हृदय में वास करने के लिए आ गया है। that from within we can know the mind of God without going to a prophet. यह है कि भीतर से हम किसी भविष्यवक्ता के पास गए बिना परमेश्वर के मन को जान सकते हैं। You don't have to go to a prophet now or a pastor or an elder to find the अब will of आपको God. किसी भविष्यवक्ता या पासबान या प्राचीन के पास जाने की आवश्यकता नहीं है परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए। What does it say in Romans 12:2? If your mind is renewed, you can prove the will of God yourself. रोमियो 12:2 से देखते हैं कि यदि तुम्हारा मन नया हो तो तुम परमेश्वर की इच्छा को स्वयं जान सकते हो। This is wonderful. You can have a direct hotline with God. You can have a direct connection with God himself. यह अद्भुत है। आप परमेश्वर के साथ एक सीधा संबंध रख सकते हैं, स्वयं परमेश्वर के साथ सीधा संबंध। But this is very important that you don't wait until a crisis comes before you begin to seek यह God. बहुत महत्वपूर्ण है कि आप तब तक प्रतीक्षा न करें जब तक कि कोई संकट न आ जाए। इससे पहले आप ईश्वर की तलाश करना शुरू करें। Some believers, they turn to God only when there's a crisis. कुछ विश्वासी संकट आने पर ही परमेश्वर की ओर रुख करते हैं। And then when things are going smoothly, they forget all about maintaining a close walk with God, and then the next crisis comes again, they turn to God. और जब चीजें सुचारू रूप से चलने लगती है तो वे परमेश्वर के साथ घनिष्ठता बनाए रखने के बारे में भूल जाते हैं, और अगला संकट आने पर वे फिर परमेश्वर की ओर मुड़ते But हैं। such believers are not going to grow. खैर, ऐसे विश्वासी बढ़ने वाले नहीं हैं। But if, whether there's a crisis or not, whether there are problems or not, we develop this habit of opening our mind to be influenced by the teaching of God's word in the New Testament कोई particularly, संकट हो या ना हो, समस्या हो या ना हो, हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं से प्रभावित होने के लिए अपने बुद्धि को खोलने की आदत विकसित करनी चाहिए, खास करके नए नियम से। and we begin to understand how God thinks, what is God's attitude towards different things. तब हम यह समझने लगते हैं कि परमेश्वर क्या सोचता है, क्या अलग अलग विषयों के प्रति परमेश्वर का नजरिया है। The Bible says we need to meditate on His word. बाइबल कहती है कि हमें उसके वचन पर मनन करने की And आवश्यकता we है। look at the life of Jesus Christ, where that word of God was demonstrated in human form. हम यीशु मसीह के जीवन को भी देखते हैं जहाँ परमेश्वर के उस वचन को मानव रूप में प्रदर्शित किया गया था। And we allow the Holy Spirit to show us the beauty and the glory of Jesus Christ and the way He lived on earth through the scriptures. इसलिए यदि हम पवित्र आत्मा को हमें पवित्र शास्त्र से यीशु की सुंदरता और महिमा और पृथ्वी पर रहने के तरीकों को दिखाने की अनुमति देते हैं, Then you will have an understanding of what God is like. तो हमें समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर कैसा है। The Bible says one of the purposes with which Jesus came to earth, John chapter 1 and verse 18, was to explain the Father. बाइबल कहती है कि यीशु पृथ्वी पर आने का एक उद्देश्य पिता को बारे में समझाना था, यूहन्ना 1:18। So when you look at the life of Jesus Christ, you know what God the Father is like. तो जब आप यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो आप जानते हैं कि पिता परमेश्वर कैसा है। And when we read the scriptures, the Holy Spirit shows us how Jesus lived, how Jesus reacted to different situations, how Jesus behaved in different circumstances. जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमें दिखाता है कि यीशु कैसे रहता था,
यीशु ने विभिन्न परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, यीशु ने विभिन्न परिस्थितियों में कैसा व्यवहार किया था। And gradually we get that explanation in our own mind of what God is like. और धीरे धीरे हम अपने मन में यह स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेते हैं परमेश्वर कैसा है। And the Holy Spirit changes our way of thinking if we submit to Him. इस प्रकार यदि हम उसके प्रति समर्पण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है। What happens? Gradually, the sinful person that you and I are धीरे धीरे पापी व्यक्ति जो आप और मैं हैं gradually gets changed into the likeness of Christ. धीरे धीरे मसीह की समानता में परिवर्तित हो जाते हैं। And then one day, when we face a crisis, we come into a particular problem. फिर एक दिन जब हम एक संकट का सामना करते हैं, जब हम किसी विशेष समस्या में आते हैं, We know almost immediately how Jesus would react here, how Jesus would behave. तो हम लगभग तुरंत ही जान जाते हैं कि यीशु यहाँ कैसी प्रतिक्रिया देगा, यीशु कैसा व्यवहार करेगा, What decision Jesus would take. And then we take the same decision. यीशु क्या निर्णय लेगा, फिर हम वही निर्णय लेते हैं And it's going to be right. और वह सही होता है। So I want to invite you, if you have never had this habit before, from today, develop the habit of opening your mind to read God's Word and meditate on it, allowing the Holy Spirit to show you the glory of Jesus in the Scriptures. मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि यदि आपने इसे पहले कभी नहीं किया है तो आज से परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उस पर ध्यान करने के लिए अपनी बुद्धि को खोलने की आदत विकसित करें। पवित्र आत्मा को आपको पवित्र शास्त्रों में से यीशु की महिमा दिखाने की अनुमति दे, so that you can see how he reacted to situations, how he behaved towards his enemies, how he behaved towards people, how he conducted himself. ताकि आप देख सकते हैं कि उन्होंने परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया दी, उन्होंने अपने दुश्मनों के प्रति कैसा व्यवहार किया, उन्होंने लोगों के प्रति कैसा व्यवहार किया, उन्होंने खुद को कैसे संचालित किया। And say, Spirit of God, change me into that likeness. ये कहते हुए प्रार्थना करो, परमेश्वर की आत्मा मुझे उस समानता में बदल दो। And then see, you'll find the will of God in different situations without having to go to a prophet or a pastor. अब आप किसी भविष्यवक्ता या पास्टर के पास जाने की आवश्यकता के बिना विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की इच्छा को जान God पाएंगे। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।